Hello students. So again we'll start the remaining examples from exercise 3.4 of by partial fraction method. In previous some lecture we completed example number up to example number 12. मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हर एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ बिकॉज ये लास्ट मेथड है इंटीग्रेशन की और हर एक एग्जाम्पल डिफरेंट है. Look at the example number now 13. In 13 there is numerator that is a linear equation. Degree of numerator is 1. Example number 13, I is equal to integration 3x minus 2 x plus 1 whole square and x plus 3 dx. Denominator expressed as repeated linear factor. एक quadratic factor नहीं, कौन सा है? Linear factor है, but repeat है because whole square है और ये non repeated linear factor है. So how to write this? 3x minus 2 divided by x plus 1 whole square x plus 3. So ये upon एक factor x plus 1 plus b upon x plus 1 whole square repeated linear factor and third c upon third factor that is x plus 3. But important, how to find the ABC. After cross multiplication you will get this 3x minus 2 is equal to a into only x plus 1 because a के डिनोमिनेटर में और एक x plus 1 है. सो ये सिर्फ एक x plus 1 को मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा x plus 3. b into only x plus 3. दिस इज LCM मेथड. b into only x plus 3. b सिर्फ इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर नहीं. इसको मल्टीप्लाई नहीं करेगा बिकॉज व्हाट b के डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर है, मैक्स बड़ा फैक्टर है. सो दैट इज b ओनली मल्टीप्लाई टू x प्लस 3. c मल्टीप्लाई टू नॉट बोथ द मैक्स, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, जो बड़ा है उसको मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 1 होल स्क्वायर. दिस इज LCM मेथड. बोथ डिनोमिनेटर विल कैंसल. नाउ इंपॉर्टेंट हाउ टू फाइंड a b एंड c. सो दिखने में तो दो ही फैक्टर है, एक फैक्टर x प्लस 1 सो वी पुट x इज इक्वल टू माइनस 1. एक फैक्टर x प्लस 3 है सो वी पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड देन वी पुट x इज इक्वल टू 0. अब हम और क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे. दिस इज अ न्यू कंसेप्ट फॉर द गेटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c. दो फैक्टर है x प्लस 1 x प्लस 3, दिखने में होल स्क्वायर बट तो x प्लस 1 ही है. सो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड दिस इज 0. x इज इक्वल टू व्हाट? 0. सो ऑन बोथ साइड x इज इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पुट करो. 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 1 प्लस 1 0. ओनली वी हैव टू पुट हियर minus 1 plus 1 0 minus 1 plus 1 0 here. b minus 1 plus 3 is 2. The value of b is minus 5 by 2. यहाँ पर b की वैल्यू मिली है. अब x की वैल्यू माइनस 3 पुट करो. माइनस 3 इंटू 3 इज माइनस 9 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3 0 माइनस 3 प्लस 3 0 ये बोथ 0. अब यहाँ पर minus 3 plus 1 minus 2 square is 4 c into 4. So c is equal to minus 11 by 4. This is the value of c. By partial fraction में सबसे important क्या है? Calculation for getting the values of a, b, c and d that are the unknown constant term. So now put x is equal to 0. 3 into 0 0 minus 2. 0 plus 1 1 0 plus 3 3 1 into 3 3 plus b 0 into 3 3 0 plus 3 sorry plus c 0 plus 1 1 c into 1 1 1 square is 1. so यहाँ पर बन गया 3a plus 3b प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2. c हमें ये फाइंड करना है.
So 3 into A plus 3 into B minus 5 by 2. C is minus 11 by 4. Minus 11 by 4 is equal to minus 2. So this is 3A is equal to minus 2. Minus 15 by 2 right side plus 15 by 2. Minus 11 by 4 right side plus 11 by 4. Plus 11 by 4. 3A is equal to LCM is 4. Right? 4 into minus 2 is minus 8. यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने में 15 2s are 30 and this is 11. So now here C is equal to 3A is equal to 11 minus 8. 11 minus 8 is 3. 30 plus 3 is 33. 33 divided by 4. 3 11s are 33. A is equal to 11 by 4. So important ये वैल्यू टर्म हमें मिल गई A, B and C. यहाँ पर B की वैल्यू A minus 1, 3 minus 1 is 2, B 2, correct है, minus 3 minus 5 by 2. Now I becomes, integral I becomes, ये सिर्फ वैल्यू वेरीफाई करना है, हमें चेक करना है बार बार, बिकॉज इसी पे आंसर डिपेंड है. नाउ A अपॉन फर्स्ट फैक्टर A इज व्हाट 11 by 4 अपॉन फर्स्ट फैक्टर x plus 1 plus B minus 5 by 2 upon second factor x plus 1 square. C is what? Minus 11 by 4 x plus 3 dx. This is by partial fraction. Now taking separate integration and taking constant term outside the integral side. So this becomes 11 by 4 integration 1 upon x plus 1 dx minus 5 by 2 outside 1 upon x plus 1 whole square is x plus 1 minus raised to minus 2. Denominator की term numerator में shift की, that becomes power negative, that is minus 2 dx minus 11 by 4 1 upon x plus 3 dx. So integral of first is log of x plus 1. This is minus 2 minus 5 by 2 plus 1 करो, this becomes x plus 1 raised to minus 1 divided by minus 1. That is what ax plus b raised to n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? ax plus b raised to n plus 1 upon n plus 1 into a. So minus 2 plus 1 is minus 1 upon minus 1. Last 2 minutes. 11 by 4 log of x plus 3. 11 by 4 log of x plus 3. Here and here we can taking 11 by 4 common. Log m minus log n is log m by n. X plus 1 upon x plus 3. Minus into minus plus 5 by 2. X plus 1 plus c. So this is a solution of this example. Example number 13. Log m minus log n is log m by n. Minus into minus plus 5 by 2. ये नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, रेसिप्रोकल लिया प्लस से. This is example number 13. So we'll take example number 14 after this. The example number 14. See the example number 14. I is equal to example 5x square plus 20x plus 6 divided by x cube plus 2x square plus x. न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है, बट हियर इंपॉर्टेंट सी द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. डायरेक्ट डिवाइड मत करो.
न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, मीन्स डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मीन्स वी कांट अप्लाई द डिवीजन मेथड हियर. सो हमें ये पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व करना है, बट डिवीजन नॉट पॉसिबल. सो दैट इज इंपॉर्टेंट हियर. दिस इज 5x square plus 20x plus 6. Taking x common from denominator, x square plus 2x plus 1 dx. X common, x square plus 2x plus 1. 5x square plus 20x plus 6 divided by denominator. This quadratic is a complete square of x plus 1 whole square dx. x plus 1 whole square. लीनियर फैक्टर ये भी लीनियर है बट ये रिपीटेड है. सो वी कैन राइट 5x square plus 20x plus 6 divided by x into x plus 1 whole square. So first factor a upon x, b upon x plus 1 and c upon x plus 1 whole square. c upon x plus 1 whole square. अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 5x square plus 20x plus 6 ये इंटू ये दोनों को नहीं मल्टीप्लाई करना है, दोनों में से सबसे जो बड़ा है उसको मल्टीप्लाई करना है. दिस इज अ फंडामेंटल मैथमेटिक्स एंड दिस मैथमेटिक्स इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटीग्रेशन. अब जनरली b इंटू हम इसको मल्टीप्लाई करते, इसको मल्टीप्लाई करते, बट b से इसको मल्टीप्लाई करना है b इंटू एक्स, इसमें से एक को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1, b इंटू एक्स प्लस 1. वाई? बिकॉज b के डिनोमिनेटर में एक x प्लस 1 है. अब c इंटू ओनली x, c इंटू इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है बिकॉज c के डिनोमिनेटर में बड़ा फैक्टर है x प्लस 1 होल स्क्वायर है. सो दिस इज अ LCM मेथड. डिनोमिनेटर कैंसल. अब हमें क्या फाइंड करना है? ABC फाइंड करना है. जनरली अब तक हमने कौन सी मेथड अप्लाई की है? फैक्टर की वैल्यू पुट की मैंने, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1. अब मैं थोड़ा अलग मेथड से आपको पढ़ाता हूँ, ये कंप्लीट सॉल्व करके उसको सॉल्व करेंगे. मीन्स लुक एट दिस 5x square plus 20x plus 6 ax square 2ax plus a plus bx square plus bx plus cx. ये एक्सपांड थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन ये भी आना चाहिए कि सच कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि ये दो कांस्टेंट मिलते, एक कांस्टेंट नहीं मिलता. दैट टाइम वी हैव टू सॉल्व कंप्लीट इक्वेशन एंड बाय कंपेयरिंग द सेम कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड, कोएफिशिएंट ऑफ x square, कोएफिशिएंट ऑफ x and constant term, then also you will get the value of a, b and c. Look at this left hand side 5x square plus 20x plus 6. ये देखो ax square plus bx square, a plus b x square कॉमन, 2ax 2bx cx, 2ax plus bx plus cx, x कॉमन, 2a plus b plus c, x कॉमन, and only one constant term, this is a. इधर भी कांस्टेंट नहीं है, इधर तो नहीं है, ओनली है. ना देखो कंपेयर करो, a plus b is equal to 5. Simultaneously 2a plus b plus c is equal to 20. 2a plus b plus c is equal to 20. Constant term a is equal to 6. ये तो डायरेक्ट वैल्यू हमें मिल गई, a की वैल्यू कितनी है? 6 है. ये कांस्टेंट a is equal to 6. Compare the coefficient of x. This is 2a plus b plus c. a की वैल्यू 6 इधर रखो, 6 plus b is equal to 5, b is equal to -1. a is equal to 6, b is equal to -1. a b की वैल्यू इधर रखो, 12 into 2 into 6 12,
12 minus 1 plus c is equal to 20. 11 plus c is equal to 20. c is equal to 9. ये आ गई c की वैल्यू. एक तो एक्सपांड करो नहीं तो वैल्यू पुट करो, दोनों भी तरीका आपको आना चाहिए. ए बी सी की वैल्यू आ गई. आप ए अपॉन फर्स्ट, बी अपॉन सेकंड, सी अपॉन थर्ड. सो आई इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स, बी माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, सी 9 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर dx. 6 outside 1 by x dx minus 1 upon x plus 1 dx plus 9 outside x plus 1 raised to minus 2 dx. Got it? All is here. रिपीट स्टेप देखो. ये डिवाइड नहीं कर सकते, दो बोथ आर पॉलिनोमियल बट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. अगर उल्टा होता, ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे कम है, तो यू कैन डिवाइड एंड दैट इज द डिवीजन मेथड. क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, दैट इज द फॉर्मूला. ओके, सो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इज log ऑफ x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड इज log ऑफ x प्लस 1, इंटीग्रल ऑफ दिस इज 9 x plus 1 raised to minus 1 divided by minus 1 plus c. So this is 6 times log x minus log x plus 1 plus plus into minus minus 9 divided by x plus 1 plus c. ये उसका आंसर. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 14. नाउ एग्जांपल नंबर 16. 16 एग्जांपल. I is equal to 1 upon x cube minus 1 dx. एक्स क्यूब माइनस 1 dx. अब इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब से सॉल्व करेंगे. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला. व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ए फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इक्वल टू so now this becomes denominator में 1 cube x minus 1 x square plus x plus 1 dx. Linear term, quadratic term. One is linear, other is quadratic. Numerator x minus 1 x square plus x plus 1. So a upon x minus 1. Quadratic के ऊपर bx plus c, bx plus c divided by x square plus x plus 1. So cross multiplication के बाद, after cross multiplication you will get a into this, a into x square plus x plus 1. This is bx plus c into x minus 1, bx plus c into x minus 1. So 1 is equal to ax square plus ax plus a bx square minus bx plus cx plus cx minus c. This expand of right hand side, a से multiply किया, वो दो फैक्टर सॉल्व किए. Now ax square plus bx square, a plus b, x square common, ax minus bx plus cx, x common, a minus b plus c, x common. Finally a minus c plus a minus c, that is constant. Left hand side only 1 is there, so we can write 0x square
0x प्लस 1। मिसिंग टर्म हम 0 ले सकते हैं। 1 इज व्हाट 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 फॉर व्हाट फॉर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x एंड कांस्टेंट। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेफ्ट में 0 है, सो हियर a प्लस b इज इक्वल टू 0। एड a माइनस b प्लस c, a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0। a माइनस c इज इक्वल टू 1, a माइनस c इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। ये 3 इक्वेशन मिल गए हमें। अब ये 3 इक्वेशन से हमें क्या सॉल्व करना है, ए बी सी सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, वो ए माइनस सी रखेंगे, a माइनस सी इज इक्वल टू 0 इधर रख दिया, सब्सट्रैक्ट किया, माइनस प्लस डजंट मीन दिस टर्म कैंसल, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, b प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस b प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहां पर a प्लस बी 0 यहां पर लिखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a प्लस बी इज इक्वल टू 0 यहां पर पुट करने के बाद a प्लस ए 2a हो जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना बन गया 0। ये माइनस बी प्लस बी कितना बन गया 0। ये 2a प्लस सी इधर रखो, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस सी प्लस सी 0, 3a इज इक्वल टू 0। a माइनस सी इज इक्वल टू 1 है, नॉट 0, a माइनस सी इज इक्वल टू 1 है। सो 3a इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज 1/3। अगर a की वैल्यू 1/3 है, a की वैल्यू 1 इधर रखो, 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 0, देयरफॉर b इज इक्वल टू -1/3। b की भी वैल्यू मिल गई, ये मिल गया, हमें c फाइंड करना है। a की वैल्यू 1/3, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये रहने दो ऐसा है, b प्लस सी की जरूरत ही नहीं थी। a इज 1/3, b इज -1/3, a की 1/3 वैल्यू यहाँ पुट की मैंने, सो b इज -1/3, a हो गया, b हो गया। अब c फाइंड करना है, सो a की जो वैल्यू 1/3 आ गई, तो यहाँ पर पुट करो जो अपने ये इक्वेशन आया था, देयरफॉर 2 into 1/3 प्लस c इज इक्वल टू 0, सो 2/3 c इज इक्वल टू -2/3, ये c की वैल्यू। बहुत सारी टेक्निक है ए बी सी फाइंड करने के। ये एक टेक्निक है, इक्वेशन कंप्लीटली एक्सपांड करो, सो यू विल गेट द a प्लस बी इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस सी इज इक्वल टू 1। 3 इक्वेशन से हमें सिर्फ उसको रीअरेंज करना है। बहुत सारी टेक्निक है, ये इधर पुट करो, सिर्फ 2 वेरिएबल अगर सेम आ गए, 2 कांस्टेंट अगर सेम आ गए, तो उसमें से एक कांस्टेंट हमें डेफिनेटली मिलता है। जैसे देखो a प्लस बी यहाँ पर रख दिया मैंने, सो माइनस बी प्लस बी 0 होगा, 2a प्लस ए 2a, ये प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये 2a प्लस सी है, ये a माइनस सी है, दोनों की कांस्टेंट ए सी है, तो कंपेयर करने के बाद ये मिलता है 1/3। इधर पुट करो, a b c हो गए। अब a b c होने के बाद हमें आंसर फाइंड करना है। देखो i इज इक्वल टू a कितना है 1/3, 1/3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, प्लस b कितना है -1/3, c कितना है -2/3, डिवाइडेड बाई कितना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। b is -1/3, c is -2/3, okay, 1/3 कॉमन, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx। यहाँ से -1/3 कॉमन ले लो, x प्लस 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। b की वैल्यू bx प्लस c, b कितना -1/3 है,
c कितना है -2/3 है, वहाँ से -1/3 लेने के बाद x+2 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक भी है। सो उससे हम वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का 1, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 1/3 log ऑफ x - 1, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/6 हो गए, 2x + 4, 2 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर x + 1 dx, ये तो हमारा इंटीग्रेशन आई था, -1/6, 2 से डिवाइड किया, दैट्स व्हाई इट बिकम 6, 3 × 2 is 6, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2x + 4, 2x + 4, हमें चाहिए था +1, ये देखो 2x + 1 + 3 डिवाइडेड बाय x² + x + 1 dx। जो 4 था उसको 1 + 3 किया, दिस टर्म एज इट इज, ये -1/6, सेपरेट डिवाइड करो, इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन 2x + 1 डिवाइडेड बाय x² + x + 1 dx, ये 3 आउटसाइड 1/x² + x + 1 dx। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, यही हमारा चालू है एग्जाम्पल नंबर 16। फाइनल तक सॉल्व करो, बी काम एंड पेशेंस फॉर दिस सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स, बहुत ही फोकस करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल था हमारा एग्जाम्पल नंबर 16। सो I इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म इज कैरी एज इट इज -1/6, डिनोमिनेटर के ऊपर डेरिवेटिव है, सो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इज log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ x² + x + 1, this is f dash of x, this is f of x, f dash of x is what, log of f of x, ये +3, ये 1/, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1/, क्वाड्रेटिक में क्या x² का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, सो फॉर गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर एड एंड सब्सट्रैक्ट b² / 4a², x² + x + 1/4 -1/4 + 1 dx। So this equal to this all term as it is, ये +3, ये ब्रैकेट में है, 1/6 बाहर है, +3 1/, this x + 1/2 whole square, 4 - 1 3, 3/4, 3/4 is √3/2² dx। ठीक है, दिस इक्वल टू दिस ऑल एज इट इज, +1/3, 1/, x² + a², 1/√3/2, tan inverse of x + 1/2 upon √3/2 प्लस, आपको क्या लिखना है, ये लिखना है 1/3 log of x - 1 -1/6 in bracket, this is log of x² + x + 1, 2 ऊपर जाएगा, 2, 3/√3 is √3, 2√3, tan inverse of 2x + 1/√3, a + c। अब हमें एक्सपांड और करना है, 1/3 x - 1, 1/6 से मल्टीप्लाई करो, 1/6 log ऑफ x² + x + 1 मल्टीप्लाई करो, -√3/3, 2/6 1/3, √3/3 is 1/√3, वो आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, 1√3/3 is 1/√3 log ऑफ
2x plus 1 by root 3 plus c. दिस इज आंसर. ओके, थोड़ा लेंथी है ये उसका आंसर. एग्जाम्पल नंबर 16. एग्जाम्पल नंबर 17 नाउ. 16 हो गया, अब 17. बड़े बड़े एग्जाम्पल है, हर एग्जाम्पल 4 मार्क के लिए एग्जाम्पल है बाय पार्शियल फ्रैक्शन का. या इज इक्वल टू, पूरे सॉल्व करके देना, एक भी मैं आपको स्किप नहीं करूंगा. इनटू cos x फंक्शन के फॉर्म में, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्म में है. मीन्स इट इज वेरी क्लियर कि हमें सब्स्टिट्यूट करना है sin x. वाई sin x? बिकॉज ये cos x dx किसका डेरिवेटिव है? sin x का है. इधर sin x है, इधर sin x, बट यहाँ पर sin x नहीं है. So we can convert this cos square x means 1 minus sin square x. This is the important judgment here. So this is 3 sin x minus 2 into cos x. A 5 minus 4 sin x minus cos square x. 1 minus sin square x. 1 minus minus plus sin square x. Minus cos square x है. माइनस साइन बाहर. व्हाट इज cos square x? 1 minus sin square x. माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस sin square x. सो नाउ पुट हियर sin x इज इक्वल टू t, द डेरिवेटिव ऑफ sin x. डिफरेंशिएट करो इसको, cos x dx इज इक्वल टू dt. सो I becomes इंटीग्रेशन 3t minus 2 cos x dx. This is a dt. 5 minus 1 4 minus sin x is t plus sin square t square. T square minus 4t, 5 minus 1 4. So we can rearrange this term 3t minus 2 dt divided by t square minus 4t plus 4. Denominator is a complete square of what? t minus 2 whole square dt. अब ये एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आ गए तो हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको. कौन सा मेथड? लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पुट लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी. उससे भी सॉल्व करो, डेफिनेटली सेम ही आंसर आएगा. आंसर में कुछ डिफरेंस नहीं होगा. बट दिस डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो अगर फैक्टराइज होता है तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो, बिकॉज विच हैज 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स और विच आर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. सो आप उसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड. सो ये देखो लीनियर फैक्टर है लेकिन रिपीटेड है, एक ही फैक्टर है. सो वी कैन यूज दिस 3t minus 2 divided by t minus 2 whole square a upon t minus 2 plus b upon t minus 2 square. 3t minus 2 a into only one factor t minus 2 b into nothing only b. अगर बाय पार्शियल फ्रैक्शन की जगह पर आप ये पुट करते लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू ये इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 2t माइनस 4, लेकिन 2 कॉमन लिया तो फिर t माइनस 2 ही बन जाएगा प्लस b. राइट. सो ये इंटू t माइनस 2 b इंटू नथिंग. इधर मल्टीप्लाई b से नहीं करना है बिकॉज b के नीचे बड़ा फैक्टर है. ये इंटू ओनली वन फैक्टर बिकॉज ए के नीचे dt माइनस 2 है. अब इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो एक्सपांड करो डायरेक्टली. दिस बिकम्स व्हाट? 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 8t माइनस 2a प्लस b. कंपेरिजन a इज इक्वल टू 3, कोएफिशिएंट ऑफ t. a की वैल्यू कितनी बन गई? 3. वैल्यू ऑफ a इज व्हाट? 3. कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं? जहां पर वेरिएबल नहीं उसे कांस्टेंट कहते हैं. वेरिएबल है कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? टी वेरिएबल है. विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी मीन्स वेरिएबल इज टी. सो हियर यहाँ पर माइनस 2 है, इधर माइनस 2a प्लस b है. ये दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म.
-2a प्लस बी इज इक्वल टू -2, ए की वैल्यू 3, -6 प्लस बी -2, so b is equal to -2 plus 6 is 4, so b is equal to 4. -6 उधर +6 हो गया, 6 - 2 is 4 हो गया. यहाँ पर पुट करो i इज इक्वल टू, यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया हमने, सो विथ रिस्पेक्ट टू t बन गया अभी एग्जाम्पल. सो ये इज व्हाट 3 अपॉन t -2, b इज व्हाट 4 अपॉन t -2 होल स्क्वायर dt. 1 अपॉन t -2 dt प्लस 1 अपॉन, ये ऊपर ले लो, दैट इज बेटर, t -2 raised to -2 dt. ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, अब यहां पर कैरी 3 आउटसाइड लिया हमने, log ऑफ t -2 प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट +1 करो ऊपर पावर में, t -2 प्लस 1 इज -1, -2 प्लस 1 इज -1, ऊपर -1 नीचे भी -1, सो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स log ऑफ t -2 प्लस इंटू -4 डिवाइडेड बाय t -2 प्लस c, 3 टाइम्स log ऑफ t sin x -2 -4 डिवाइडेड बाय sin x -2 प्लस c. आंसर, बिकॉज मैंने यहां पर क्या पुट किया था, sin x इज इक्वल टू t, सो व्हाट इज आंसर 3 टाइम्स log ऑफ sin x -2 -4 डिवाइडेड बाय sin x -2 प्लस c. दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 17. अब 18 के आगे जो एग्जाम्पल बचे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे. दिस इज सफिशिएंट, 5 एग्जाम्पल हुए आज, 1 2 3 4 5. ओके, we'll stop here. On next video lecture we'll take next example. Thank you very much.